تو میں کہہ رہا تھا کہ ماشاءاللہ قومی اتفاق رائے ہوا کہ جب یہ بلدیہ کی حکومت چلی جائے، کراچی کے عوام کا مینڈیٹ جب اس کے پاس کراچی کی حکومت نہ رہے تو پھر سب مل کر کراچی میں کچھ کام کرنے کی کوشش کریں، کہیں غلطی سے اس کا سیاسی فائدہ ایم کیو ایم نہ اٹھا لے۔ ہم اس میں بھی خوش ہیں کیونکہ اس سے شاید لوگوں کو ایم کیو ایم کی عوام کے ساتھ جڑے ہوئے رشتے کا اندازہ نہیں ہے۔ کئی بار 2001 میں ایم کیو ایم نے بلدیاتی انتخابات نہیں لڑ لیا، کیا فرق پڑ گیا ایم کیو ایم کو؟ 93 میں ہمارا حالات کے جبر کی وجہ سے ایک نمائندہ بھی قومی اسمبلی میں نہیں تھا۔ ہم یہاں پر نہ صرف سڑکوں، گلیوں اور محلوں میں عوام کے درمیان رہتے ہیں اور سانس لیتے ہیں، بلکہ ان کے دلوں میں بھی بستے ہیں۔ تو بہرحال ہم نے یہ بھی قبول کیا، اور جو 1100 ارب کا پیکج کراچی کو دیا جا رہا ہے اس کو خوش آمدید بھی کہا، اس سے امیدیں بھی بنوائی ہیں، اور بس سب سے مل کے یہ دعا کی درخواست ہے کہ کراچی کے عوام کے لوگوں کو امید تو ہے، یقین بھی آ جائے۔ اب خدشات لیکن موجود ہیں۔ ایسے خدشات گناہ نہیں ہیں، کیونکہ کئی بار اعلانات ہوئے ہیں اور ہوا کچھ نہیں ہے۔ اچھا، اس وقت یقین اس لیے امید زیادہ ہے کہ اب ایم کیو ایم کا میئر نہیں ہے، تو سیاسی فائدہ اٹھانے کے لیے سب کا حق ہے، ہم سمجھتے ہیں منی پاکستان ہے، سب کا حق ہے پاکستان کراچی سے لینے کا، لیکن دینے کا کسی کی نیت نہیں رہی ہے۔ اب دے رہے ہیں تو ہم اس پر تنقید کر کر اس امید کو ختم نہیں کرنا چاہتے۔ کچھ لوگ جو کچھ دیا جا رہا ہے اس کا پوسٹ مارٹم کر رہے ہیں، ہم بھی وہ یہاں نہیں کرنا چاہتے۔ ہم نے تو دعاؤں کی زد پہ رکھا ہوا ہے، اپنا تعاون پیش کیا ہوا ہے کہ خدا کے لیے اس شہر کی ترقی براہ راست پاکستان کی ترقی سے وابستہ ہے، پاکستان کی ترقی براہ راست اس شہر کی ترقی سے وابستہ ہے، پاکستان کی خوشحالی براہ راست اس پاکستان کی کراچی کی خوشحالی سے وابستہ ہے۔ لیکن خدشات نے اس وقت یقین کی شکل اختیار کر لی جب اس پورے سندھ میں ایڈمنسٹریٹرز کا تعین ہوا تو ان کو ایک لسانی اکائی کے علاوہ کوئی نہیں ملا۔ ہماری درخواست کیا تھی؟ ہماری درخواست یہ تھی کہ کراچی میں کم سے کم کراچی کا رہنے والا، کراچی کے دکھ کو سمجھنے والا، محسوس کرنے والا، کراچی سے پیار کرنے والا، یہاں پر کما کر یہاں پر لگانے والا کوئی ایسا ہو جس کی سیاسی وابستگی کسی سے بھی ہو، اس کو یہاں کا ایڈمنسٹریٹر لگا دیا جائے، اور یہی حیدرآباد کے لیے کیا جائے، یہی لاڑکانہ کے لیے کیا جائے، یہی سکھر کے لیے کیا جائے، یہی طریقہ ہے تمام مہذب معاشروں میں۔ ہم نے جب اس پہ اپنے خدشات کا اظہار کیا تو ہمیں یہ بتایا گیا کہ بھائی اس بات کو مناسب نہیں سمجھا گیا کہ ایک الگ سے ایڈمنسٹریٹر لگایا جائے، اسی لیے ڈپٹی کمشنرز کو یہ ذمہ داری دے دی گئی ہے۔ تو بھائی ایسا تو کراچی کے کمشنر کو یہ ذمہ داری کیوں نہیں دے دی گئی؟ کراچی کا کمشنر بھی تو صوبائی حکومت کے ہم سے زیادہ قریب ہے نا، وفاداریاں زیادہ ثابت رہی ہیں نا، تو کہ ڈپٹی کمشنر کو اگر یہ فارمولہ طے کر لیا ہے تو کراچی کے کمشنر کو بھی ایڈمنسٹریٹر بنا دیتے، تو صرف سیاسی وابستگیوں کا مسئلہ نہیں ہے،
यहां पर यह साबित किया जा रहा है कि सिंध में ना तो किसी और को नौकरी मिलेगी, ना तरक्की मिलेगी, ना तालीम मिलेगी। तो क्या आप समझते हैं कि इसके लिए सिंध के शहरी इलाकों के लोग और कराची, जहां पर पूरा पाकिस्तान बसता है। खैर आवाज चली गई थी, मैं आम बात यह कर रहा था कि मुझे नहीं पता कि वफाकी हुकूमत के पास क्या वजूहात थी कि जिसके वजह से उन्होंने मोहतरम वजीर आजम साहब ने, मुझे लगता नहीं कि वजीर आजम साहब का ये फैसला है, क्या वजूहात थी जिसकी बुनियाद पर यह फैसला किया गया कि वफाकी हुकूमत अपने एक इत्तेहादी की मुंतखब बल्दियाती हुकूमत के बजाय सिंध की 13 साल से करप्शन की तारीख रखने वाली सूबाई हुकूमतों के बैरोक्रेट के जरिए तरक्याती काम जो कुछ होने हैं, अब जब ये एडमिनिस्ट्रेटर लगा दिए गए हैं तो क्या ये खदशात अब यकीन में तब्दील होने का वक्त नहीं आ गया? आपने अगर ये 1100 अरब इस शहर पे लगाने थे तो उनके जरिए लगवाने चाहिए थे जो इस शहर को जानते हैं। अगर उनके जरिए कमीशन कमाना था तो कोई भी आ सकता है, लेकिन मैं इस पे नहीं जा रहा कि किसकी क्या क्रेडिबिलिटी है, वरना कहने को तो लोग कह रहे हैं कि आपने डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में जिसको एडमिनिस्ट्रेटर लगाया है वो अनवर मजीद के साथ खुद डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की 2 प्रोजेक्ट में उस पर नैब पे इंक्वायरी चल रही है, कोई एक्यूज है। तो जो साबित शुदा जिस पे इंक्वायरी चल रही है उसको तो आपने इस काबिल समझ लिया, लेकिन किसी उर्दू बोलने वालों को या किसी पंजाबी को या किसी पख्तून को आपने इस काबिल नहीं समझा पूरे सिंध में। जनाब आली, इस मामले में सिंध भर से, सिंध के शहरी इलाकों से, कराची से हमारे पास बेपनाह फोन आ रहे हैं। लोग बेपनाह मायूसी का शिकार हो रहे हैं। लोग इस हवाले से हमें ताने दे रहे हैं कि आप कब तक तमाशा देखते रहेंगे। मैं समझता हूं इस पे एक्ट करने का टाइम आ गया। हमसे कहा गया, देखिए हम वफाकी हुकूमत के भी शुक्रगुजार थे कि वो कराची के बारे में सोच रही है। फिर हमें इत्मीनान ये हुआ कि अफवाज पाकिस्तान खुद कराची के मसले को समझती भी है, उसके साथ मुखलिस भी है और उसको इम्प्लीमेंट भी कराना चाहती है। और उसकी मौजूदगी में हमें तो बहुत उम्मीद है कि ये जो कहा गया है उस पर किसी हद तक अमल दरामद होगा। लेकिन ये जो एडमिनिस्ट्रेटर लगाए गए हैं, कोई भी सूबाई हुकूमत इसका जवाब दे सकती है, दे। वफाकी हुकूमत ने एडमिनिस्ट्रेटर को कबूल किया है तो वो जवाब दे। क्या वजह है कि एक लिसानी इकाई के लोगों को इस बात के काबिल समझा गया, इस बात के लिए काबिल एतबार समझा गया कि उन्हीं को लगाया गया है सिंध के शहरी इलाकों में। हम बाकी जगहों की बात तो नहीं कर रहे। और जनाब आली, ये जो हातिम की कमर पे लात मारी जा रही है कराची को 1100 अरब देके, वो शहर जो हर साल कितना देता है 3000 अरब, यानी कि 3 साल में 9000 अरब दे चुका होगा। जब यहां पर 1100 अरब रुपए अगर लग रहे हैं तो लग जाएंगे। क्या किया जाएगा? K4 पे अमल दरामद किया जाएगा। बहुत अहम बात कर रहा हूं। K4 पे अमल दरामद किया जाएगा। ये मुआहदा तो वफाकी और सूबाई हुकूमत के दरमियान पहले भी हो चुका है ना, कि K4 पे दोनों मिलकर काम करेंगे। तो वफाकी हुकूमत ने तो अपना पैसा दे दिया था, सिंध हुकूमत ने नहीं दिया। अब कौन गारंटी लेगा कि सिंध हुकूमत देगी? ये मुआहदा था ना
کہ گرین لین بس کا اسٹرکچر پورا کا پورا وفاقی حکومت بنائے گی. اور یہ بھی مجھے کہنے کی اجازت دیجیے, یہ پروجیکٹ پرانی وفاقی حکومت کا اس صوبائی حکومت کے ساتھ تھا, یعنی کہ پارٹی تو یہی تھی. تو آپ نے دیکھا کہ وفاق کے دیے ہوئے پیسے سے تو پروجیکٹ تیار ہے, صوبے کی جو ذمہ داری تھی بس چلانے کی, ایک رکشہ بھی لا کے نہیں کھڑا کیا. تو کیسے ہمیں خدشات نہ ہوں؟ ہم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ یقین کریں, یقین کر رہے ہیں جناب, خدشات تو ہیں, اور ان ایڈمنسٹریٹرز کے آنے کے بعد خدشات یقین میں تبدیل ہونے سے کوئی نہیں روک پائے گا. جب تک اس شہر کا دکھ اور درد اور ایسے لوگ جن کی کریڈیبلٹی ہو بغیر داغ اور دھبے کے ماضی رہا ہو, اس کے بغیر خدشات جنم لیتے رہیں گے. اور اس معاملے میں ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی فیصلہ کرے گی کہ ایوانوں میں بات کر کے بہت دیکھ لی ہے. اگر ہمیں اب ووٹ سے بات نہیں بن رہی ہے اور روڈ پہ آنے میں مجبور کیا جا رہا ہے تو پھر آنا پڑے گا. ہم چاہتے ہیں, عوام کو بھی میسج دینا چاہتے ہیں کہ ہمارے دور میں نہیں ہونے دیا, کوئی بات نہیں ہے, ہمارے تو ماتھوں پہ شکن بھی نہیں آئی, ہم نے تو خوش آمدید کہا ہے, لبیک کہا ہے, لیکن بتا رہے ہیں یہ کئی بار ہو چکا ہے, اس بار ہونے کے بھی امکانات بڑھ رہے ہیں کہ یہ پیسے کراچی میں لگنے کے بجائے کہیں ایسا نہ ہو ایک بار پھر دبئی کے ریل اسٹیٹ اس کے ذریعے اوپر چلی جائے, یہ کہیں اور چلے جائیں, کسی اور جیبوں میں چلے جائیں. اور K4 لے لیجئے جناب, K4 کا کریڈٹ آپ کو دے دیں گے اگر بن گیا, لیکن یہ بتائیے یہ K4 کا آئیڈیا کب کنسیو ہوا تھا؟ 2007 میں. تو 2008 میں جب امپلیمنٹ کا ٹائم آیا تو اس ملک اور شہر کی بدنصیبی ہے کہ یہاں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آ گئی. میں وفاق سے بھی اور ریاست سے کم یہ درخواست تو کرتا ہوں کہ ان سے سوال تو کریں کہ یہ جو 13 سال ضائع ہوئے ہیں, وہ پروجیکٹ جو چند ارب کا تھا اس میں کئی 100 ارب بڑھ گئے ہیں, اس کا حساب کس سے لیا جائے گا؟ KCR یہ جائکا کے ذریعے ایم کیو ایم کی پچھلی بلدیاتی حکومت کے دور میں اس پہ کام ہو چکا تھا, وہ تیار تھے. اسی سندھ حکومت نے, اسی پیپلز پارٹی کی حکومت نے وفاق میں تھی, اس کو نہیں ہونے دیا. یہ S3 جو ہونا ہے, جس کے نہ ہونے کی وجہ سے یہ تباہی مچی ہوئی ہے, یہ کب نکاسی ہے آپ کا جو ہے, بارش میں پانی کھڑا ہے تو یہ ذمہ داری کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کی ہے نا, جو میئر کراچی کے انڈر میں نہیں تھا. میئر کراچی کی نکاسی آپ کی ذمہ داری نہیں رہ گئی تھی, پیپلز پارٹی نے اپنے پاس رکھ لی تھی. تو کوئی پوچھے گا اس جرائم کے بارے میں کہ وہ S3 سیوریج 3 کا منصوبہ جو 2007 میں کنسیو ہوا تھا, اس کو 2020 میں کیوں ڈسکس کیا جا رہا ہے؟ یا ان کے تمام گناہ معاف ہیں؟ ہماری تھوڑی سی گفتگو پہ بھی ہم سے سوال جواب ہونے لگتے ہیں. کوئی یہ بتائے گا کہ ایم کیو ایم جو 1997 میں نومبر میں ہونے والے بلدیاتی الیکشن میں سویپ کر گئی تھی, اس کا میئر جس نے جنوری 88 میں حلف اٹھایا تھا, اس نے اگست میں پورے ساؤتھ ایسٹ ایشیا کا پہلا ماس ٹرانزٹ ورلڈ بینک سے منظور کروا لیا تھا. وہ آج تک کیوں نہیں لگا؟ بدنصیبی اس شہر کی, اس صوبے کی, اس ملک کی تھی
कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की हुकूमत आ गई और उसने उसको शेल्फ कर दिया। वो शहर जो सिंध को 95% और वफाक को 70% रेवेन्यू देता है, उसकी सेवरेन गारंटी नहीं देगी अगर वफाक, तो फिर किसकी देगी? बताना यह कि एमक्यूएम ने क्या किया, बता ये रहे कि ये सब करके बैठे हुए थे। जब जब मैंडेट के साथ इख्तियार हुआ है, उसी दौर के कराची को आज तक याद किया जाता है। लोग बोलते हैं कराची की यह हालत हो गई, एमक्यूएम क्या कर रही है? कोई जवाब दे। क्या पीपुल्स पार्टी के आने से पहले कराची की हालत यही थी? या कराची के हालत को, कराची की तरक्की को न सिर्फ पूरे पाकिस्तान में मिसाल के तौर पर पेश किया जाता था, बल्कि दुनिया भर में किया जाता था? ऐसा है कि नहीं है? कोई हिसाब लेगा इन लोगों से कि इन्होंने 13 साल में ये बराह रास्त दुश्मनी है पाकिस्तान के साथ। कराची से दुश्मनी, बराह रास्त पाकिस्तान से दुश्मनी। और जनाब अली, हम शुरू से कहते हैं तो गालियां पड़ती हैं। 50 साल पहले पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी से पहले का पाकिस्तान बेहतर है या आज का पाकिस्तान बेहतर है? इनके जराइम की जो तारीख है, इस पे किसी को परेशानी नहीं है। पता नहीं कौन सा लाडला पल्ला है। और आप बताइए, जो कुछ हम ये कहते थे कि आपने तो 1970 में, 1972 में कोटा सिस्टम लगाकर पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने सिंध को शहरी और दही में तकसीम कर दिया। अब 2 सिंध हैं, 2 सिंध के 2 अलग कोटे के जोन हैं। आपने सिंध को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। एक वो सिंध जो कमा के देता है, दूसरा वो सिंध जो उसको खर्च करता है। और आपने सिंध को, हमने नहीं, आपने सिंध को लिसानी तौर पे 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया, जिसपे आपने इस दफा बड़ी बेशर्मी के साथ पाकिस्तान के इत्तेहाद के खिलाफ, सिंध के इत्तेहाद के खिलाफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेटर्स को लगाकर आपने इसकी लिसानी तकसीम पे मोहर लगा दी। इसके बाद भी सराय की जो भाई हैं हमारे, उनको लगता है कि लाहौर बहुत दूर है। उनको लगता है कि उनको जो फंड मिलना चाहिए था नहीं मिलता है। वहां हालात इससे अशरे अशीर भी नहीं है। वहां पर सराइकी भी वजीर आला बनता है, वहां पर पंजाबी वजीर आला भी बनता है। यही खैबर पख्तूनख्वा में हजारा बेल्ट के भी वजीर आला ज्यादा बने हैं, पख्तून कम बने हैं। लेकिन वहां तो मसला नहीं है, वो तकसीम नहीं है। वहां पे तकसीम की हिमायतें पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून समेत तमाम सियासी जमातें कर रही हैं। लेकिन जहां तकसीम बहुत वाज़े और गहरी है, वहां पर सूबे की बात करना हराम है। जनाब अली, ये अगर हराम है, ये अगर गद्दारी है, तो जरा आइन पे झांक के देखें। आइन में इसका ऑप्शन मौजूद है, और आइनी ऑप्शन को गद्दारी कहने से ज्यादा बड़ी गद्दारी कोई और नहीं। और जो लोग सूबे की तकसीम को गद्दारी कहते हैं, वो सबसे बड़े गद्दार हैं। इसका मकसद है कि वो सूबे को एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट नहीं समझते, एक अलग से मुल्क समझते हैं, या उसको बनाने का इरादा रखते हैं, या साजिशें कर रहे हैं। जिस तरह डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन है, सूबा भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है, उसको भी आबादी के साथ साथ तकसीम होना था।
आप क्या मैसेज दे रहे हैं, आप क्या चाह रहे हैं? और हमने कभी भी मौजूदा सूबे लिसानी बुनियादों पे तकसीम है। हम कहते हैं खुदा का खौफ करो, अच्छा उस पे रहने में भी कोई हरज नहीं है, लेकिन हम कहते हैं पाकिस्तान के जो हालात है खुदा का खौफ करो, इसको एडमिनिस्ट्रेटिवली तकसीम कर दो सूबे में पाकिस्तान को, और पूरे पाकिस्तान में कहीं सूबों का सबसे मजबूत, जायज और तारीखी मुतालबा मौजूद है तो सिंध के शहरी इलाकों का है। आप कहते हैं कि कराची सिंध का अटूट अंग है, इस पाकिस्तान में तो नहीं था भाई। अगर सिंध की तारीख 5000 साल पुरानी है, वो टूट नहीं सकता, तो पंजाब की भी होगी यार 2-3 हजार साल पुरानी, तो वो क्यों तकसीम हो सकता है? और सिंध का तकसीम हो रहा है। सिंध डिस्ट्रिक्ट, आपने कराची में डिस्ट्रिक्ट बना दिए हैं, हम कह देंगे कराची तकसीम हो रहा है। और कौन तकसीम कर रहा है कराची में डिस्ट्रिक्ट, कौन बना रहा है? वो जिनके पास 50 साल से कराची में कोई मैंडेट नहीं रहा है, जिनके पास इस शहर का मैंडेट नहीं रहा है, वो तकसीम कर रहे हैं। एमक्यूएम ने अपने हिस्से की सारी कुर्बानियां दी हैं इस सूबे को एक रखने के लिए, इसमें नफरतों की और गलत फहमियों की खलीज को दूर करने के लिए। आप लड़काना से किसी उर्दू बोलने वाले को जिता के दिखाते, हमने तो फेडरल बेरिया से कई बार जिता के दिखाया, और जिता के जताया है कि ना एमक्यूएम ना यहां की आवाम किसी से नफरत रखती है। आपकी नफरत इस ऐलानात से बड़ी वाज़ेह है, आईने की तरह, कि आपको एक उर्दू बोलने वाला इसमें नहीं मिला है पूरे सिंध भर में। कोई इस काबिल नहीं था, कोई इतना पढ़ा लिखा नहीं था। हमने तो कोई नाम नहीं दिए थे एडमिनिस्ट्रेटर से, और हमें ये यकीन दिलाया गया था कि भाई अभी थोड़े दिन पहले तक तो कह रहे कराची का मैंडेट एमक्यूएम के बाद, अभी थोड़े दिन पहले तक तो बल्दिया का 80% मैंडेट था ना इस शहर का हमारे पास। इसी को तो मैंडेट कहते हैं, असल मैंडेट। तो भाई हम जो तरक्याती काम होने जा रहे हैं उसके लिए दुआ भी करेंगे, शामिल भी होंगे, साथ भी देंगे, लेकिन ये दरख्वास्त भी करेंगे जिन माहिरीन के हाथ में दिया गया मंसूबा, उनको लूटने की जितनी पीएचडी उन्होंने की हुई किसी ने की, करप्शन की जितनी मजबूत तारीख उनकी है किसी के नहीं है। वैसे तो मैं परेशान हूं कि खरबों डॉलर्स की करप्शन की बात की जाती थी, अब करप्शन घटकर तोशा खाने के तोहफों तक रह गई है। तो क्या होने जा रहा है हमें अंदाजा नहीं। ऐसा ना हो करप्शन और एहतिसाब का ये नारा फिर अपना दम तोड़ दे। बहरहाल जो कुछ किया गया है, सिंध को मुकम्मल तौर पर तकसीम करने की सनद का ऐलान कर दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, वफाक भी करती है, आप भी करते हैं, अवाम भी करती है। हमारी अवाम तो इस तरह की, अभी हमारी एमक्यूएम होती ना, अभी हमारी एमक्यूएम की राब्ता कमेटी में भी हो रहा होता ना, और हमें फैसला करना होता है एडमिनिस्ट्रेटर, वो कहते नहीं खुदा का खौफ करो यार भाई, सारे मत लगा दो, 5 में से एक पख्तून को भी लगा दो, यही राब्ता कमेटी कहती, एक सिंधी को भी लगा दो, और यही करते रहे हम लोग। ऑपरेशन हुआ है हमारे खिलाफ, सब तालियां बजाते रहे, बीबीजे ने किया था ना मावरा अदालत कत्ल, हम निकले तो हमने क्या किया अपनी तरफ से, हमने क्या किया है, हमने उस महाजिर कौमी मूवमेंट को मुत्तहदा कौमी मूवमेंट बनाया। हमारा तरीका देखें, हम नफरत का जवाब कैसे दे रहे होते हैं। आप हमारे लोगों को निशाना बनाते रहे, हम यहां से सेनेटर बनाते रहे।
देखिए दो बातें हैं कि आप सबकी तसल्ली के लिए कि कहीं ये ना लगे कि अब काम होने जा रहा है और एमक्यूएम की बल्दियात नहीं है। गो कि मैंने बताया है सारे मंसूबे हमारे कंसीव किए हुए और आप सबको हमने दिखाया था कि वफाक से हमने क्या मुआहिदा किया था। हमने ये सब चीज़ें मांगी थी ना। तो अगर हमारे ही उन मुतालबों पर हमारे कंसीव किए हुए प्रोजेक्ट्स को पूरा किया जा रहा है तो हम साथ हैं। हमें किसी भी, अल्लाह को शुक्र है शायद पाकिस्तान में कोई इतनी लोगों को लग रही होगी बाज़ाहिर तक कमज़ोर, जाली तौर पर तकसीम करने की जो कोशिश की गई है, इतनी मजबूत तंजीम है और इतने पढ़े लिखे वोटर्स हैं, इतना पढ़ा लिखा मैंडेट है। हमें किसी इस तरह की चीप किस्म की सियासी क्रेडिट की ज़रूरत रही नहीं है कभी। आपने तो हमारे क्रेडिट में टॉर्चर सेल और पता नहीं क्या क्या छोड़ा था। अवाम का फैसला तो वही रहा ना, जैसे हम थे उसी तरह उसने हमें बरता। हम सबसे आखिरी में, वफाक ने भी कर लिया इस पे अपने तहफ़्फ़ुज़ात और अभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात की बात कर रही है। कोई भी ले जाए, कोई भी ले जाए, कोई मसला नहीं है। इस रोड पे मौजूद है, कोई मुकाबला नहीं कर सकता। सियासत करने के लिए नहीं आए थे, खिदमत करने के लिए आए थे। और आप, मैं पहले दोबारा बोल रहा हूं, कोई मसनूई तब्दीली इस शहर की तकदीर बदल नहीं सकती है और न कोई मसनूई तब्दीली न एमक्यूएम को तब्दील कर सकती है। डिस्कस हो रहे थे ना, थे और मैं वज़ीर आज़म साहब से जो मुलाकात हुई थी वहाँ पर मेरा ख्याल है शायद सिर्फ एमक्यूएम ने नहीं, ये तहफ़्फ़ुज़ात पीटीआई के साथियों ने भी किया हो। ठीक है, तो हम भी चाहते हैं तमाम में हुज्जत हो ही जाए एक बार, फिर वो कराची जो हमने 2 बार आपको दिया है उससे बेहतर चला जाएगा तो हमें भी कोई तकलीफ नहीं है। अच्छा, इस पर ही बात हुई है। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैं इसका पोस्टमार्टम यहाँ नहीं करना चाहूँगा, लेकिन उसमें वर्ल्ड बैंक की इमदाद भी शामिल है, चाइना का कर्जा भी शामिल है। अच्छा, दूसरा ये कि बहुत जल्दी ब्रेक होने वाला है, तो उसके अलावा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी है। हम तो कहते हैं जहाँ से भी लगे, फिर कुछ पैसे कराची को लूटने के जुर्म में सुप्रीम कोर्ट के पास जमा है, तो वो भी है, कहीं से भी आया हो, हमें ये पता है कराची का पैसा तो फाक दे रही हो, कहाँ से आया भाई कराची के अलावा। अच्छा, कर्जा भी ले रहे हो, आप ही को तो वापस करना है यार, तो है कराची का कर्जा जो मिल रहा है वो भी आपको उतारना है। जो डैम बन रहा है ना कहीं और, उसका कर्जा भी आपने उतारना है। अच्छा, जिन्होंने, कोई पूछ लेना 800 अरब दे रहे हो, तो 13 साल में तो 80 अरब भी नहीं दिए कराची को, अब अचानक कैसे देने लगे हो।
देखिए, कम से कम इस शहर के और सिंध के शहरी इलाकों के जज्बात का इजहार तो कहीं ना कहीं और किसी न किसी तरीके पे होगा। जी, 2013 मजबूत तरीन गवर्नर था इशरत अली वाक़। उस वक्त आपके सीनियर लोग जाते थे और सिर्फ लोकल गवर्नमेंट एक्ट पे दस्तखत करते हैं, मुदाखलात करते हैं। उस वक्त आप सही थे या अब आप सही हैं? गुड। मेरे भाई, आप किस चैनल से हैं? GNN से। अच्छा, कोई मसनूई किस्म की जमात फोटोशॉप करके या गलत तारीखें डाल के तस्वीर जारी करे ना, उसकी रिसर्च कर लेनी चाहिए साफी भाइयों को। 2012 में MQM पाकिस्तान मौजूद थी पीपल्स पार्टी के साथ कोलिशन में। अक्टूबर 2012 में सिंध पीपल्स लोकल गवर्नमेंट एक्ट आया था असेंबली से, पीपल्स पार्टी और MQM मिलकर लाए थे। फरवरी 2013 तो उस पे साइन हुए। जो तस्वीर ये दिखाते हैं कायम अली शाह साहब के साथ डॉक्टर फारूक सत्तार और सब बैठे हुए हैं, और गवर्नर डॉक्टर इशरत अली वाक़ के साथ। फरवरी 2013 में हम निकले हैं गवर्नमेंट से। पीपल्स पार्टी ने अगले रोज जनरल जिया का 1979 का कानून नाफिज कर दिया। निसार खोड़ो कायम मुकाम गवर्नर थे। जो मौजूदा सिंध का लोकल गवर्नमेंट एक्ट है वो 21 अगस्त 2013 को असेंबली से इन्होंने मंजूर किया है। मैं लीडर ऑफ अपोजिशन था, ख्वाजा इजहार मेरे डिप्टी थे। हमारी तकारीर असेंबली के रिकॉर्ड पर मौजूद है कि हमने उसको उठाकर फेंक दिया था। और कौन से गवर्नर ने किया था? और तो मेरे कहने का मकसद ये है कि MQM ने इसको रिजेक्ट किया, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उस वक्त 4 अरकान सूबाई असेंबली थे, इन्होंने उसके हक में वोट दिया था पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर। तो बहुत क्लैरिटी के साथ MQM ने 2012 का सिंध पीपल्स लोकल गवर्नमेंट एक्ट, गूगल कर लें, निकल आएगा आपके पास। हम जारी करते हैं। और एक आध चीज रह गई थी, मैं थोड़ा सा भी ये बयान कर दूं कि एतराजात हमें क्यों हैं, इनकी नीयत के ऊपर क्यों एतराज है कि 12 बरसों में 3.25 लाख से ज्यादा नौकरियां दी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सूबे में। शहरी सिंध का इनके बानी के लगाए हुए कोटे के मुताबिक 1.5 लाख नौकरियों का हिस्सा बनता है। इन्होंने अपने जिन डिप्टी कमिश्नर्स को, चहीतों को अभी एडमिनिस्ट्रेटर लगाया है, इन्हीं डिप्टी कमिश्नर्स, इन जैसे डिप्टी कमिश्नर्स के जरिए जाली डोमिसाइल बनाए सरकारी सरपरस्ती में। ख्वाजा इजहार भाई की पिटीशन मौजूद है हाई कोर्ट में, सबको इख्तिलाजी कल्ब वाक़ हुआ है कि उस पिटीशन की अगर क्लैरिटी आ जाए, पुलिस उठाकर देख लेना कराची की, कितना कराची का लड़का आपको नजर आता है। डोमिसाइल उठाकर चेक कर लें किसी के भी, सिंध सेक्रेटेरिएट चले जाएं, पता चल जाएगा कि कितनी शहरी सिंध को नौकरियां दी हैं। तो ये पीपल्स पार्टी इन इक़दामात के जरिए शहरी सिंध के उस मुकदमे को मजबूत करती है कि जिसका खालिद भाई ने यहां पर इजहार किया है कि हम थोड़ी किसी तकसीम, और ये जो कहते हैं कि सूबे की तकसीम कोई बॉर्डर बन जाता है, कोई पासपोर्ट बनता है सूबे का कि इधर से आप उधर नहीं जा सकते। ये इंतजामी तकसीम है, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। क्यों सूबा जरूरी है? क्योंकि एक ऐसा वजीर आला कि जो जाली अक्सरियत के जरिए सूबाई असेंबली को कंट्रोल करता है। जाली क्यों है? क्योंकि सिंध की 60% आबादी शहरों में रखती है, मुझे मर्दमशुमारी में नहीं गिनते, उसके बाद उसके हिसाब से हल्का बंदियां नहीं करते आप। अगर आज आप कराची, हैदराबाद से मीरपुर खास, सक्खर, नवाबशाह शहरों को सही गिन लें तो हमारे बजाय पीपल्स पार्टी नए सूबे का कयाम का मुतालबा करती नजर आएगी यहां पर, क्योंकि इनकी जाली अक्सरियत यहां पर खत्म हो जाएगी। वो जाली अक्सरियत की बुनियाद के ऊपर 34 असिस्टेंट कमिश्नर हायर करे, एक भी शहरी सिंध से न हो। जाली अक्सरियत की बुनियाद के ऊपर सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में साईदाद सोलंगी को मेंबर लगाए, जिसके 3 बच्चे एक वक्त में यहां पर पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान पास करें, 2 देई सिंध से, 1 शहरी सिंध से। जाली अक्सरियत की बुनियाद के ऊपर ये सारे एडमिनिस्ट्रेटर लगा दे तो यहां वाले ये भी नहीं कहेंगे कि मेरी हुकूमत मुझे रिप्रेजेंट नहीं करती, मेरी हुकूमत को मेरा एहसास नहीं है। 13 साल में 80 अरब रुपए नहीं दिए हैं, यहां पर जाली हाइड्रेंट दिए हैं यहां पर, और ये कहते हैं कि चाइना कटिंग MQM ने की। ये आज की तारीख तक नहीं हो रही है चाइना कटिंग। ये हिल पार्क पर, सुरजानी टाउन में, न्यू कराची में कौन कर रहा है? 10 बरस से, 12 बरस से किसका वजीर बल्दियात बैठा हुआ है, वजीर दाखिला बैठा हुआ है? जरा उसको निकाल लें। तो मेरे ख्याल में शहरी सिंध का मुकदमा बहुत मजबूत है। जरूरत इस बात की कि शहरी सिंध की तमाम आवाजें इस सोच से हट जाएं कि ये MQM का मुकदमा है, ये मुहाजिरों का, यहां रहने वाली दीगर लसानी इकाइयों का, जिनका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कोई एहसास और पास नहीं है, ये उनका मुकदमा है।
ایک کامنٹ دیں نا. میرے بھائی این ڈی ایم اے نے بھی نالے صاف کیے ہیں نا, تو وہ پیسوں سے ہی کیے ہیں, یعنی مشینری آئی ہے, ان کے پاس فنڈز ہیں. مسئلہ کیا ہے, وسیم اختر صاحب یا دیگر جو ہمارے ڈسٹرکٹ چیئرمین یا یو سی چیئرمین بھی کیا کہتے رہے کہ ایک آئین ہے ملک کا, وہ یہ کہتا ہے کہ بلدیاتی حکومتوں کے پاس مالی, سیاسی اور انتظامی ذمہ داری اور اختیار ہوگا. دیر از نو ریسپانسبلٹی وداؤٹ اتھارٹی. سندھ گورنمنٹ نے آئین کی کانٹروینشن میں کیا. میری سپریم کورٹ خاموش بیٹھی ہوئے 3 برس سے مقدمہ لے کر گئے ہوئے ہیں. چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں 3.5 کروڑ کی آبادی ہے, ایم کیو ایم کا مقدمہ موجود ہے, 3 سال میں اس پہ کوئی فیصلہ نہیں ہوتا. تو نظام کو, اور یہ 1100 ارب روپے اس کرپٹ گورنمنٹ کو آپ دیں گے کہ یہ چلائے, تو یہ تو 11 ارب روپے بھی نہیں لگائیں گے. اس لیے اس پورے پروجیکٹ کی جو کنسیو کیا گیا انسٹیٹیوشنل بیکنگ ضروری ہے. وہ کیا ہے انسٹیٹیوشنل بیکنگ؟ وہ ہے ایک با اختیار, با وسائل آئین کے تحت قائم بلدیاتی حکومت. بلدیاتی ادارہ نہیں, آئین پاکستان میں لکھا ہے بلدیاتی حکومت. تو کراچی کے میئر نے اگر اختیار مانگے, اگر وسائل مانگے, تو وہ کراچی کے شہریوں کا حق تھا جو میں کما کر قومی خزانے میں دیتا ہوں. ایک منٹ. میئر کراچی پر الزام لگانے والے خود نیب میں پیشیاں بھگت رہے ہیں کرپشن کی, اور جب جب میئر کراچی کو نشانہ بنایا جاتا ہے تو یہ بالواسطہ پیپلز پارٹی کی حمایت کی جاتی ہے. ملک توڑنے والے, کرپشن کرنے والوں کی جب بھی حمایت کی جائے, سمجھ لو اس وقت ایم کیو ایم میئر اور مہاجروں کو الزام دیا جائے. دوسری بات, سندھ کی دوسری بڑی اکائی ہے مہاجر. کسی کو اچھا لگے یا برا لگے, مہاجر ایک شناخت ہے. کراچی آپریشن کے بعد ہم سے یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ کراچی میں ہماری کمیونٹی کے احساسات, احساس محرومی کو دور کرنے کے لیے حکومتیں اور ریاستی ادارے ہمارے وہ تحفظات دور کریں گے. اس میں کراچی میں تعمیر و ترقی بھی تھی, اس میں ہمارے جائز حقوق بھی تھے, اور جائز حقوق میں ہمارے مالی حقوق بھی تھے, ہمارے انتظامی حقوق بھی تھے. لیکن کراچی آپریشن کی سختیاں برداشت کر لی, زیادتیاں برداشت کر لی, صعوبتیں برداشت کر لی. لیکن اگر اس کے بعد اتنی بڑی کمیونٹی کو لاوارث چھوڑ دیا جائے, بے یار و مددگار چھوڑ دیا جائے, اور ان سے کیے گئے وعدے پورے نہ کیے جائیں, تو پھر سندھ کے اندر جو احساس محرومی پیدا ہوگی اس کی ذمہ داری پھر سندھ کے حکمرانوں پر ہوگی. اس کا جواب میری آخری جو پریس بریفنگ تھی اس میں کلیئرلی دیا گیا ہے کہ 4 سالوں میں حکومت سندھ نے جو تنخواہ اور پینشن کی مد میں پیسے دیے وہ کلیئر کیے, سارے سامنے رکھے. تقریباً کوئی سالانہ 11 ارب تقریباً جو ریسیو کیے ہیں حکومت سندھ سے. اس کے بعد جو ون ٹائم گرانٹ ملی حکومت سندھ سے وہ بھی ڈیٹیل بتائی پریس کے تھرو. اس میں مختلف مد میں پیسے ضرور دیے گئے, مگر ہائی کورٹ, سپریم کورٹ کے آرڈرز پہ وہ اماؤنٹ دی گئی, جیسے کہ ایم ڈی سی کی تنخواہ, جیسے کہ نالوں کی صفائی, جیسے کہ بجلی کا بل. یہ پیسے اس ہیڈ میں دیے گئے. رہ جاتا ہے اے ڈی پی, اینول ڈیولپمنٹ پروگرام, اس میں 6 ارب کا شارٹ فال ہے 4 سالوں میں. 6 ارب کا ایلوکیشن کچھ, اور جو ملتا تھا وہ نہ ہونے کے برابر کراچی کے لیے. تو یہ ڈیٹیل میں دے چکا ہوں, یہ ڈیٹیل میرے اندر ہے, کاغذ پہ بھی آپ کو پرووائڈ کر دوں گا. اس سے زیادہ زیادتی اس شہر کے ساتھ ہو نہیں سکتی جس طرح سے 4 سالوں میں کی گئی ہے حکومت سندھ نے.